Hello and welcome, guys, and welcome to yet another session. Yes, where I'm going to introduce you to a winner, to an achiever of the June 2024 attempt. As an old saying goes, age is of paramount importance. The right age to do things are the best things, and if age bypasses, if age is bygone, then the right thing or the best thing to do, that might pass. So my nani used to say, पढ़ाई की कुछ उम्र होती है, कुछ साल पढ़ाई की उम्र होती है, उसके बाद आप पढ़ाई कर नहीं सकते. हालांकि in many cases this has been proven wrong, because I have seen students aged 45 years and up till 65 years qualifying CMA. But still, guys, age is of paramount importance. All of us want success at an early age. All of us want our goals and dreams to be achieved and at early age. और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी प्रोफेशनल डिग्री एक राइट एज पे अटेन कर लें. And today, the story is not about an all India rank holder. The story is not about a student who has scored superbly well, or 90 marks or 80 marks in any of the subjects. Today, the story is about a student who has qualified CMA at the age of 21 years. And yes, it is really important to qualify your professional degree at the right age, so that you can get the right opportunities in future. You can get time to learn things in future. You get time to make mistakes in future. You can take your time to learn more things, learn from your mistakes, and grow in future. And that is the reason why always our parents, our mentors, our guides always harps upon this fact that right age is of paramount importance. So yes, today I'm going to welcome CMA Rohit Rawat, and yes, he has qualified his CMA finals at the age of 21 years. So many congratulations, CMA Rohit Rawat, first of all, for attaining this big milestone. You are a professional now. You have those three alphabets before your name, CMA. कैसा लग रहा है रोहित CMA बनने के बाद? It's feel great after becoming a CMA in this younger age, but एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है सीएमए बनने के बाद कि लोग आपसे बहुत चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू योर फील्ड कि मेरे को कोई टैक्स का इशू है, किसी चीज का इशू है, कॉस्टिंग का इशू है, तो आपके पास मैं आऊं और मेरे को एकदम से आप सोल्यूशन दे. तो बिकमिंग सीएमए इज एन फीलिंग फॉर others. Three magical words may be different, but for me is always a CMA. परफेक्ट परफेक्ट रोहित. रोहित, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने सुना रोहित फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स क्वालिफाई किया और सीएम में बना? फैमिली का सर अच्छा रिस्पॉन्स था, बट माय फैमिली इज नॉट दैट मच उनका मानना है कि कई चीजें पर्दे में अच्छी लगती है, तो वो उतना हाँ मेरे को दिखाते हाँ नहीं है. मेरे को दिखाते नहीं हाँ. है कि क्योंकि आई एम द यंगेस्ट वन इनटू फैमिली एज वेल, तो वो मुझे उतना पोर्ट्रे नहीं करते सक्सेस के बारे में. बट सपोर्ट उन्होंने हमेशा करा है. जो भी मैंने डिमांड करी है वक्त से पहले मुझे मिल गया है वो चीज, वेदर इट इज रिलेटेड टू माई स्टडी, maybe some gadgets, maybe my vehicle, everything I can get. So my family is very happy, and yeah. ब्रिलियंट रोहित. रोहित, अब सवाल ये उठता है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह बनाएं. ठीक है, एज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट एज में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो दिस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज आल्सो और अदर एरियाज आल्सो. लेकिन अभी मुद्दा ये है स्ट्रैटेजी के बनाएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा क्वालिफाई हो सीएमए, एंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम इकट्ठे कैसे लेके चलें. व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी? For my strategy, I was telling about the final. I am into the final. तो strategy जो मेरी है हमेशा मेरा एक थंब रूल रहा है. जो वो थंब रूल है कि हर ग्रुप में, whether you are appearing for the both group or a single group, if you are appearing for the single group, तो you can take only 2 classes into the group. Every group, if you are appearing for the both group, तो you can take 4 classes. उससे जो है आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से हो जाता है. मैंने थर्ड, Oh. यस सर. So for the third group, I take only 2 classes, and fourth group I always already take 2 classes. In both group I take 2 classes, not even into the final, my intermediate as well Hmm. and my foundation as well. This is my Hmm. thumb rule I use
बिकॉज आई सी सर, आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि कई बच्चे जो है वो इतनी क्लासेस ले लेते हैं कि उन पेपर हाँ, अटेम्प्ट आने को होता है और उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, एंड करेक्ट, वो उन्होंने फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उन्हें पेपर देना ही पड़ता है और वो अटेम्प्ट उनका वहाँ पे करेक्ट, अटेम्प्ट लग जाता है। तो करेक्ट। ये कोई वो रेस नहीं है कि आपको पहले दौड़ना है, पहले पहुंचना है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, योर स्ट्रेटेजी, एंड जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस जगह ज्यादा वर्क करो, इंस्टेड ऑफ कि कोई दूसरा क्या कर रहा है मेरे को उसको देख के करना है। हुँ, हुँ, ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि सीएमए सीए जो ये हुँ। सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है ये सिर्फ 24 में ही किए जाए, 25 की एज में ही हाँ, किए जाए। नेवर बी अ हुँ, बेंचमार्क, आई वांट टू बी अ बेंचमार्क कि आप 20 में भी कर सकते हो, आप 19 में भी कर सकते हो। आई वांट टू कोट एक है जिन्होंने 19 ईयर्स में सीए करा था, नंदिनी अग्रवाल, वेल नोन। हुँ, तो हुँ, उनसे ही करेक्ट, मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि उनकी अगर वो कर सकती है तो व्हाई आई एम नॉट। तो यही करेक्ट, चीजें आपको भी देखनी है। जी सर। परफेक्ट। तो ये बहुत अच्छा रोहित ने थंब रूल बनाया एंड आई रिमेंबर मेरा भी ये रूल हुआ करता था। सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। दैट इज़ माय viewpoint to all the students because then you end up spending all your time looking at the lectures and your a lot of time gets consumed. Now it depends up to you. There's no thumb rule that you have to take coaching of this subject and do not take coaching of this subject. There is no such thumb rule. That depends on you. You decide which subject do you want to do on your own, which subject do you want coaching for. So that will help you in completing your course early. That will help you for doing adequate revisions, और इससे टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होता है बिकॉज क्लासेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो दोनों चीजों का बैलेंस आउट करके चलना इज फर्स्ट थंब रूल जो रोहित ने बताया विच इज सुपर गिवन। सो रोहित, एग्जाम से पहले कितनी रिवीजन करनी चाहिए? सर आई थिंक इट्स डिपेंड अपॉन, एवरीवन नोज अबाउट जो सीए सीएमए से होगा उन्हें पता है, एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस हम्म, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हम्म, तो आपको हम्म, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है और आपकी वीकनेसेस पे वर्क करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। हम्म, आई वांट टू टेक हम्म, अ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द थर्ड ग्रुप एग्जांपल। When हम्म, I came to the third group, I never have SFM before. In intermediate, there is हम्म, nothing called SFM. I don't have an हम्म, international taxation in intermediate. No हम्म, have trust taxation. तो मैंने कभी वो पढ़ा नहीं था। तो I take two हम्म, classes of SFM and indirect taxation. एंड हम्म, बाकी दो जो सब्जेक्ट है एससीएम, जिसमें कई पोर्शन ओएम का भी है जो हमने इंटरमीडिएट में ऑलरेडी हाँ, पढ़ा हुआ है। और जो हाँ, लॉ थी, लॉ मेरी एक स्ट्रेंथ रही है हमेशा से, तो वो मैं कभी क्लासेस हाँ, नहीं लेता हूँ उसकी, ये मेरी शुरू से ही है। हम्म, तो लॉ मैंने सेलेक्ट करी, एससीएम मैंने सेलेक्ट करी, एसएफएम और आईडीटी में और डीटी में मैंने कोचिंग ली। मैंने कोचिंग क्यों ली? क्योंकि ओके, वो सब्जेक्ट मेरे लिए न्यू थे, वो सब्जेक्ट मैं पहली बार देख रहा हम्म, था इस ग्रुप में। हम्म, बट मैं शॉर्ट एनालिसिस यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ लॉ है, मेरी स्ट्रेंथ टैक्सेशन है। मुझे पता है कि अगर हम्म, मैं 1 महीने बाद भी टैक्सेशन का कोर्स उठाऊंगा तो मैं उसे 10 दिन 5 दिन में गैदर कर लूंगा। हम्म, वेदर एसएफएम हम्म, मैं हर 5 दिन में भूलता जा रहा हूँ कि वो करेंसी वाले में क्या हम्म, क्वेश्चन था, कैसे करना था। तो हम्म, उसे मेरे को बार बार रिवाइज करना है। तो बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, मैंने जो एसएफएम की रिवीजन है वो अराउंड 5 से 6 बार करी थी। और ओह वाओ, जो हम्म, टैक्स की रिवीजन थी वो मैंने 3 या 4 बार करी थी, और बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन मैंने 2-2 बार करी थी। बिकॉज़ ओवर अच्छा, कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि मेरे को सब आता है, करेक्ट, मैं पढ़ूँगा ही नहीं इसे करेक्ट, पेपर से 2 दिन पहले। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं या हम्म, कई एरियाज़ ऐसे होते हैं सिलेबस में, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है। एक दिन में तो हम्म, कभी कवर कर नहीं सकते, कई चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपको ओवर हम्म, कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ को लेके करेक्ट, चलो। क्योंकि आप करेक्ट, एक एक पेपर में 100 ले आएँगे वो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक में 40 से नीचे आ गए तो फिर उस 100 की कोई वैल्यू नहीं है, मेरा ये मानना है। करेक्ट, क्योंकि आपको मैं 2 सब्जेक्ट में असम्पशन लाने की हमेशा ट्राई करता हूँ और 2 नॉर्मल रखता हूँ। बस 2 में हम्म, मेरे 60-60 आ गए एंड 40-40 भी अगर बाकी 2 में हम्म, आ गए तो मेरा एग्रीगेट बन जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट, नो मैटर विच फैकल्टी यू आर, नो मैटर हाउ ब्रेव यू आर, आपने कैसे पढ़ा है, एट द एंड द रिजल्ट मैटर। एंड उसको करेक्ट, देख के ही आपको स्टडी करनी चाहिए। करेक्ट, तो ये परफेक्ट मेरी रोहित, सर परफेक्ट स्ट्रेटेजी टिप, थी। यस यस, गुड। और आखिरी के 8 दिन को मारने की स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि वो सबसे क्रूशियल होते हैं? सर एक्चुअली मेरा जो रिवीजन पैटर्न है वो ये है कि जब भी पेपर हो, फॉर एग्जांपल मैं जून 24 में अपेयर हुआ था, तो
10th ऑफ जून से पेपर स्टार्ट थे, तो जो प्रीसीडिंग मंथ था दैट इज मई, तो वो मंथ मेरे को पूरा रिवीजन के लिए चाहिए था। तो हम्म फर्स्ट व्हाट आई डू एट द स्टार्टिंग ऑफ द मे, मैं पहले हम्म 5-5 दिन हर 4 सब्जेक्ट को दिए मैंने, सो आई कैन रिवाइज हम्म वाइजली और अच्छे से, कोई मैं जल्दबाजी में कुछ छोड़ ना दूं, कोई पॉइंट मेरे से निगलेक्ट ना हो जाए, उन सब चीजों को देख के देर आफ्टर 10 days आर लेफ्ट इनटू द मे, तो मैंने 3-2 का स्प्लिट बनाया। एस एफ एम आई डी टी हम्म ओ डी टी जो मेरे न्यू सब्जेक्ट थे उनको 3-3 days दिए एंड बाकियों को 2-2 दिए। देयर आफ्टर जो हम्म 10 days रह गए थे, उसमें मैंने एक और बार एसएफएम को और डीटी को टाइम दिया, पहले के 3 या 4 हम्म दिन। देयर आफ्टर एक हम्म एक दिन में बाकी 2 रिमेनिंग जो सब्जेक्ट थे एचसीएम और लॉ वो प्रिपेयर करी, एंड हाँ जो फर्स्ट पेपर था मेरा फिर हमने उसकी रिवीजन करी ऑनवर्ड 6, बिकॉज फर्स्ट पेपर का हम्म इंप्रेशन आपके चारों पेपरों में पड़ता है, तो आपका फर्स्ट पेपर अच्छा जाना चाहिए। दैट्स व्हाट हम्म आई वांट। परफेक्ट। व्हाट अ मैनेजमेंट रोहित, 2-2 दिन में रिवाइज करना और फिर आखिरी के 10 डेज में दोबारा रिवाइज करना on your subjects which are crucial. This strategy really worked for you. Superb, Rohit. यस So सर। yes, Rohit, I think तुमने अपनी पूरी जर्नी बहुत अच्छे से समराइज करी। 6 महीना और आखिरी के 10 दिन किस तरह में शेड्यूल बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छे से अपना पूरा तुमने डिस्कस किया हमारे साथ। अब अगर मैं तुमसे लास्ट 3 ऐसे टिप्स पूछूं जो तुम्हें ऐसा लगता है कि एट एन अर्ली एज फटाफट से हमारा कोर्स खत्म करने में हमको मदद करेंगे, 3 ऐसे टिप्स, वो 3 टिप्स क्या होंगे? देर इज नथिंग कॉल्ड टिप्स, बट यही होता है कि हर किसी की, सर मैं ये मानता हूँ कि पोजीशन अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी पे टिप्स नहीं चलती, बट मैं अपनी टिप्स देना चाहूंगा, अगर आपको एप्लीकेबल हो तो आप यूज करिए। पहली करेक्ट। टिप्स ये होगी, नेवर कंपेयर योर सेल्फ हम्म विथ एनी वन इन योर कोर्स और मे बी द अदर कोर्स एज वेल। हम्म यू आर, आपका जो कोर्स है, कई कंपैरिजन करते हैं कि यार मैंने तो अभी ये नहीं करा, उसने इतना कर लिया, या उसका पूरा कोर्स हुँ, कंप्लीट हो गया वो तो रिवाइज कर रहा है, मैंने नहीं करा। हुँ, तो डजंट हुँ, मैटर कि वेदर ही वाज रिवाइजिंग, शी वाज रिवाइजिंग, the things is matter is your preparation, whether you how much you are prepared. So the first strategy is never be compare yourself with anyone. हुँ, हुँ, The second one, be planned always. I always prefer quote, better already planned is half win. सर आपकी बुक से ये कोट था, मैंने हुँ, उठाया था, हुँ, आपकी बुक में भी ये कोच है, कोट दिया हुआ है एससीएम बीवी की। हुँ, तो जो आप हुँ, पहले चीजों को प्लान कीजिए, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, हुँ, आप उस स्ट्रेटेजी को वर्क कीजिए कि मैं इसको 5 दिन हुँ, दूंगा, इसको 4 दिन दूंगा, इनकी मैं क्लासेस हुँ, लूंगा, इनकी मैं क्लासेस नहीं लूंगा, तो आप हुँ, वहीं पे हुँ, क्वालिफाइड हो जाओगे। आधा वंस काम यू कर नो देता हूँ। अबाउट द, यस। यस, वंस यू नो अबाउट कि आपको क्या करना है ना, तो क्लियरिटी ज्यादा रहती है और आप अपना आउटपुट जो है वो ज्यादा बेहतर निकालोगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर जो बिल्कुल। ट्रॉमा में आके कुछ भी कर देते कई बीच बीच में, कि मतलब कई क्वेश्चन एक ग्रुप में आ हुँ, गया, कहीं मेरे साथ भी हुआ था कि वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो मैं सोचता हूँ यार मेरे को इसकी इसकी रिवीजन करनी चाहिए, तो मैं अपनी प्रीवियस सब्जेक्ट जिसका मैं रिवाइज कर रहा था उसको बीच में छोड़ के मैं उधर चला जाता, तो वो नहीं करना है, हुँ, वो नहीं हुँ, करना है। थर्ड थिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर, ये जो यस, चीजें है इसको आपको, आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आपको अगर अपना लेवल देखना है, वेदर आई एम कंपेटेबल विद द फाइनल ऑफ सीएमए, तो आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके पेपर सॉल्व करने ही है, एज करने मच ही एज पड़ेंगे। आपको जो भी आपको प्रोवाइड हो, कितने भी आपके रेलिवेंट ईयर्स हो, उसके आपको सॉल्व करने हैं, एंड नॉट वंस टाइम आपको। मेरा तो सर एक ऐसे भी था, एक और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा इसी से रिलेटेड पेपर से। कोई अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसमें कई अच्छे कॉन्सेप्ट है या फिर सारे कॉन्सेप्ट है जिसकी जो आने की संभावना है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेता था, उस पर मैं हुँ, रेलिवेंट सेक्शन उसका, हमारे फोन में एक फीचर होता है उसी में लिख के, और मैंने अपनी गैलरी में फोल्डर बना रखा था, आईडीटी, एसएफएम, एससीएम, लास्ट मिनट क्वेश्चंस। ओह! सो पेपर हुँ, खो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पेपर खोलने की जरूरत हुँ, नहीं है, आपके जो हुँ, स्क्रीनशॉट्स है आपके पास, जो आपने फोल्डर बना रखे हैं ऑलरेडी, लास्ट डे जो हम वन डे स्ट्रेटेजी, हमें वन डे की लीव मिलती है, उसमें आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, सो द जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो निगलेक्टेड ना हो उस जगह से, वो निगलेक्ट ना हो करेक्ट, जाए वहां से, और आप कोई ऐसा क्वेश्चन करेक्ट, ना छोड़ दो फिर आपको रिग्रेट हो वो क्वेश्चन पेपर में आ गया हो कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने करेक्ट, करा था, मैं बहुत अच्छा था इसमें बट रिवाइज नहीं करा। तो आप उसका करेक्ट। स्क्रीनशॉट लो, अगर वो टेक्स्ट का क्वेश्चन है रेलिवेंट सेक्शन लिखो, और उसे अपने फोल्डर बना के आईडीटी लास्ट डे रिवीजन, मेरे अभी बहुत सारे फोल्डर है, उसमें आप सेव कर लो। सो द लास्ट डे यू चेक, परफेक्ट। आप मेट्रो में भी है तो आप उसके
गो थ्रू कर सकते हो। स्क्रॉल थ्रू कर सकते हो। वेरी तो गुड, दीज वेरी आर द गुड थ्री टिप रोहित। स्ट्रेटजी, दीज आर ब्रिलियंट, माय थ्री ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। रोहित। मजा आ गया। अब समझ थैंक में यू आ सर। गया हमें कि तुम 21 इयर्स में कैसे सीएम में बने हो और किस तरह स्मार्ट स्टडी करके हार्ड वर्क के साथ साथ तुमने इंटरमीडिएट और फाइनल को क्वालिफाई किया एंड बहुत सही एज में क्वालिफाई किया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तुम कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर होगे, कॉर्पोरेट में एंटर करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप विच इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड रोहित। From the entire channel, we wish that we see you as a costing director, finance director, or a CFO of a big company very, very soon, because it all to make it really, really big. So all the best from our entire channel. थैंक यू सर। So okay, we'll see you. I'll invite you soon again as a CFO of a big company or a finance director soon on this channel. We'll be meeting once again. Okay. ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay, Rohit. Bye bye. Bye. And congratulations once again. थैंक यू सो मच सर। Yes, guys. So this was Rohit Rawat for all of you. CMA at the age of 21 years. और आप सोच सकते हैं 21 years में CMA बनना मींस कॉर्पोरेट को अर्ली ज्वाइन करना, मतलब प्रमोशन, मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कमिंग हिज वे इन द फ्यूचर। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको एक या दो अटेम्प्ट लग जाएंगे उनका करियर स्पॉइल हो जाएगा या फिर उनका करियर कुछ भी नहीं होगा। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। बट हाँ, हम जब भी एस्पायर करते हैं ना अपने लिए हम बेस्ट चीज एस्पायर करते हैं। हम कोशिश करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्वालिफाई करें। हम हर चीज अपने लिए बेस्ट एस्पायर करते हैं। तो ये भी क्यों ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जाए, सही टाइम पे सही एज पे क्वालिफाई किया जाए, ताकि ऑल other things fall in place at the right time are given to us. So yes, I'll be back with more such interviews for all of you, whereby I'll be calling, inviting the winners, the achievers of June 2024 attempt, so that you get inspired for the December 2024 attempt on this positive note. All the very best, guys, and happy studying. Bye bye. See you in the next session.